بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ آج رات 18 کی ہے اور زبردست عید ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کائنات میں اور کوئی بھی خوشی کا دن نہیں ہے جیسا 18 غدیر کا۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ موسم بھی بڑی اچھی ہے، آسمانوں پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، خوشی کا دن اور ایسی موسم، کیا خوبصورت ماحول ہے آس پاس کا۔ آج میں زبردست اور بڑا خوش ہوں کیونکہ یہ 18 غدیر کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ کو خوشی ہوئی۔ آپ سورہ مائدہ کو پڑھیے، وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اے حبیب میں تیرے دین سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ یہ کب کہا اللہ نے؟ سارے جانتے ہیں، 18 غدیر والے دن۔ اللہ کی خوشی کا دن بھی آج، اللہ کے رسول کی خوشی کا دن بھی یہ 18 غدیر کا دن، مولا علی کی خوشی کا دن بھی 18 غدیر کا، سرکار زمانہ تک سارے عاشقوں کی، معصومین کی خوشی کا دن یہ 18 غدیر۔ میرے مرشد پاک سخی لال شہباز قلندر نے کیا خوب فرمایا ہے، چوں بصورت شد علی روئے محمد بر غدیر، صورت آن زیں سبب اشاک خوب خوشتر گرفت۔ مرشد پاک نے فرمایا کہ جب غدیر کے میدان میں علی رسول کی صورت بنے، مطلب ان کے دستار پہنی اور ان کی مسند پہ جو فائز ہوئے، اس کے وسیع، اس کے خلیفہ ہوئے، اسی وجہ سے ہم عاشقوں کو اس 18 غدیر والے دن، مولا کی ولایت کے اعلان والے دن زبردست خوشی ہوئی۔ یہ میرے مرشد کا بیان ہے۔ سلمان فارسی کے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا، سلمان آج اتنا بڑا خوشی کا دن تو رو رہا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو جب زیادہ خوشی ہو جاتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی، اللہ کے حبیب کی، مولا علی کے عاشقوں کی، مولا علی کے ماننے والوں کی، مولا علی کے محبوبوں کی خوشی کا دن ہے۔ اور حضور پاک نے فرمایا جو بھی اس 18 غدیر والے دن، اس عید والے دن ایک مومن کو کھانا کھلائے، گویا اس نے 1,24,000 پیغمبروں کی دعوت کی۔ 1,24,000 پیغمبروں کی دعوت کا کتنا ثواب ہوگا؟ حضور نے فرمایا آج کے دن جو بھی ایک مومن کو کھانا کھلائے، گویا اس نے 1,24,000 پیغمبروں کو کھانا کھلایا، پھر چاہے آدھا کھجور کیوں نہ ہو۔ اسی لیے میں آج اس زبردست خوشی اور عید کے دن آپ علی والوں کو ایک دو تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور جو میں آج آپ کو ایک دو تحفہ دینا چاہتا ہوں، نسخے دینا چاہتا ہوں، یہ میرے سینہ کا راز تھے جو آج میں خوشی کے دن یہ چیزیں آپ پر لٹا رہا ہوں مولا کے صدقے، اور اسی خوشی میں، کیونکہ خوشی میں پتہ نہیں بندہ کیا کیا دے جاتا ہے۔ اگر یہ بات غلط ثابت ہو، میں آپ سے جھوٹ بولوں، یہ چیزیں غلط ثابت ہوں، تو آپ کا حق بنتا ہے قیامت والے دن مولا کے سامنے میرا گریبان پکڑ کر آپ کہہ سکتے ہیں، یا علی ایسے بھلارے دن، عید غدیر والے دن تیرے اس بندے نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ اگر میری بات درست نکلے پھر آپ پر حق بنتا ہے میرا کہ قیامت کے دن مولا علی کے سامنے گواہی ضرور دینا، یا علی عید غدیر والے دن خوشی کی حالت میں تیرے اس بندے نے ہم کو زبردست تحفے دیے تھے۔ پہلا تحفہ یہ ہے کہ 5 جو درد ہیں، ان دردوں کا 1 منٹ میں آپ خاتمہ کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ لفظ ہے یا سمعلونی والمتانی، یہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے اور آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کو
پکے مضبوط کاغذ پر اس کو لکھنا ہے ایسے، یا سمعلونی والمتانی، ایسے آپ کو لکھنا ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو کچی دیوار پر یا سبز درخت پر اس کی جڑ پر رکھ کر کے، مثلاً داڑھ کے درد والا ہے اس کو کہیے کہ آپ کے قریب کھڑا ہو جائے، پھر جس جگہ اس کو درد ہے رخسار پر انگلی رکھے، درد والی جگہ پر مگر رخسار پر انگلی رکھے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک کیل اٹھا کر کے یہ جو سین ہے اس میں سین، اس پر آپ کیل کو ٹھوکیں ہتھوڑا سے، پھر اس سے دریافت کریں کہ کیسے، وہ کہے گا کہ کچھ فرق آیا، یا تو ختم ہو جائے گا درد یا تو کچھ فرق آئے گا۔ اگر پھر بھی گنجائش ہے تو اور جو ہتھوڑا اس کیل پہ آپ کو دوسری بار ٹھوکنا ہے، اس سین پر آپ کو، یہ دیکھیں سین پر آپ کو کیل رکھ کے ہتھوڑا ٹھوکنا ہے، یا تو درد ختم ہو جائے گا۔ اگر درد ختم نہیں ہوا تیسری بار زور سے ٹھوکیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ اس کا آپ تصور کریں کہ پھر کبھی بھی اسی داڑھ میں درد نہیں ہوگا، اس کو آپ کو کہنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے اگر پھر کبھی درد ہو پھر بھی آنا، تو درد ہو جائے گا، 3 دن کے بعد ہو، 1 ماہ کے بعد ہو یا سال کے بعد پھر درد لوٹ آئے گا۔ اگر آپ اس کو کہیں گے پھر کبھی درد نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، مگر یہ جو کیل ہے اس پہ لگی پڑے، خود بے خود کبھی نہ کبھی یہ جو کاغذ ہے فنا ہو جائے گا، کیل نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اور حلق کے درد والا، گلے کے درد والا، جب آپ کے پاس کوئی آئے بندہ کہ حلق کا درد ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہی طریقہ، میم، یہ جو میم ہے اس کی، یا سمعلونی، اس کی میم، یہ پہلی میم جو ہے اس پر آپ کو ہتھوڑا سے کیل ٹھوکنی ہے، تھوڑا سا ہتھوڑا اس کو لگا کر کے پھر اس سے درد دریافت کریں، یا تو درد بھاگ جائے گا یا تو باقی گنجائش رہے گی۔ پھر دوسری بار ایسا کریں، درد ختم نہ ہو تیسری بار اس کو ہتھوڑا لگا کے ٹھوکیں، کیل کو ٹھوکیں، تیسری بار سے انشاءاللہ تعالی حلق کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور کان کے درد کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، دیکھیں کہ حلق کے درد کے لیے اگر اس میم پہ درد ختم نہ ہو، پہلی میم پہ، پھر آپ کو دوسری جو متانی والی میم ہے اس پہ کیل ٹھوکنی ہے۔ اگر پہلی میم پہ درد ختم نہیں ہوتا تو دوسری میم پہ کیل ٹھوکنی ہے، دوسری میم پہ انشاءاللہ تعالی درد ختم ہو جائے گا۔ اور کان کے درد والا کوئی مریض ہو، چکھ کر رہا ہو، کان کا درد بھی خطرناک ہوتا ہے اور بڑا ہی یہ درد اذیت دیتا ہے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو واو ہے یا سمعلونی کی یہ جو واو ہے اس جگہ پر آپ کو کیل ٹھوکنی ہے ہتھوڑا سے، ٹھیک ہے؟ ایک بار ٹھوکا دے، اس سے پوچھیں، اگر درد غائب نہ ہو پھر دوسری بار ہتھوڑا لگائیں، تیسری بار لگائیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ اگر اس واو سے بھی درد ختم نہیں ہوتا تو اس واو کو استعمال کریں، والمتانی والی واو کو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کان کا درد بھاگ جائے گا۔ اور سر کے درد کے لیے اسی طرح آپ کو کیا کرنا ہے، مریض کو سامنے کھڑا کرنا ہے، وہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھے، سر درد والا ہے وہ اس جگہ ہاتھ رکھے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی جو یا ہے یا سمعلونی، یہ یا، اس پر حرف پر آپ کو کیل ٹھوکنی ہے، ایک بار ٹھوکے، دوسری بار ٹھوکے، تیسری بار سے درد بھاگ جائے گا۔ اگر اس یا سے نہیں بھاگتا پھر یہ والی جو یا ہے اس کو استعمال کرنا ہے، ہتھوڑا ٹھوکے، انشاءاللہ تعالی درد بھاگ جائے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آدھے سر کے درد کے لیے کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی سر کا درد کسی بھی مسئلے سے کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ کاغذ پر، پکے کاغذ پر، مضبوط موٹے کاغذ پر آپ کو یا سمعلونی والمتانی یا سمعلونی والمتانی یہ لکھ کر کے پھر آپ کو کچی دیوار پر یا سبز درخت پر یہ کاغذ رکھ کر کے آپ کو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم جو ہے وہ الحمد کی لام سے ملا کے ایک ہی سانس میں اس پہ دم کرنی ہے۔ مثلا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، ایسے کرنا ہے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم ہے یہ الحمد کی لام سے ملا کے پڑھنی ہے ایک ہی سانس میں، اس پر دم کرنی ہے۔ پھر آپ کو جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ویسے ہی کرنا ہے۔ اس سے 4 قسم کے درد ختم ہوتے ہیں۔ کون سے درد؟ داڑھ کا درد، حلق کا درد، کان کا درد،
सर का दर्द। और बुखार के लिए आपको क्या करना है, त्वा पर कील ठोकनी है। ये जो मुतानी वाली त्वा है, ये हल्के बुखार के लिए नहीं है, मगर किसी बच्चे को बुखार या किसी भी बूढ़े वगैरह को बुखार है और बुखार किसी भी दवाई से नहीं टूटता है, तो आप उसको सामने बिठाकर, खड़ा कर या सुला कर भी आप इस त्वा पर कील ठोकें और तस्वर ये करें कि इस मरीज़ के बुखार दर्द के लिए ये काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला उसका बुखार टूट जाएगा। एक दिन ना टूटे, दूसरे दिन करे, तीसरे दिन करे, फिर कभी भी ये बुखार उसके पास नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। आप इसको आज़मा कर देखें, ये मेरी मुजुर्बात में है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों मरीज़ों पर इस चीज़ को मैं आज़मा चुका हूँ। सीने के राज था मेरा ये, और इस ईद गदीर की खुशी में मैंने आपको ये चीज़ दे दी। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो एक ज़बरदस्त चीज़ है, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। इसमें आप ख़ुद अपना इलाज कर सकते हैं, किसी भी मरीज़ के किसी भी मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं आसानी से। उसमें क्या है कि आप एक हवादार जगह पर बैठ करके, खुली जगह पर या हवादार कमरा हो, उसमें बैठ करके आप दाएं तरफ वाला जो नत्था है ये अंगूठे से बंद करें, ठीक है। अब बाएं तरफ वाला जो नत्था है उससे आप लंबी सांस अंदर खींचें, आस्ता आस्ता लंबी सांस अंदर खींचें, फिर इस दोनों को बंद कर दें। ऐसे बंद करके दिल ही दिल में फिर आप जितनी देर रोक सकें, या कम से कम आपको 11 बार या 21 बार पढ़ना है, अली शाफ़ी अली काफ़ी अली मुआफ़ी, अली शाफ़ी अली काफ़ी अली मुआफ़ी। बेहतर तो ये होगा कि आप 21 बार पढ़ें, सांस बंद करके। बाएं नत्थे से, ये दायां नत्था बंद करके बाएं नत्थे से सांस खींचे और फिर उसको बंद करके आप दिल ही दिल में 21 बार पढ़ें, अली शाफ़ी अली काफ़ी अली मुआफ़ी। फिर आप दाएं नत्थे से खारिज करें, इस पर उंगली रखें, दाएं नत्थे से खारिज करें, ये एक चक्कर हुआ। फिर आप इसको दूसरी बार दाएं नत्थे से सांस अंदर खींचें, ठीक है, फिर ये बंद करें। फिर आपको 21 बार फिर भी आपको यही पढ़ना है, अली शाफ़ी अली काफ़ी अली मुआफ़ी, अली शाफ़ी अली काफ़ी अली मुआफ़ी। ये 21 बार, 2 सांसों का एक चक्कर हुआ। 20 चक्कर आपको रोज़ाना करने हैं 40 दिन तक। इसका फ़ायदा क्या है, आपकी जान में ज़बरदस्त सुकून आ जाएगा, आपके जितने भी दुनिया के दर्द गम हैं सारे मिट जाएंगे। तजर्बा करके देखें, और आपके छुपे हुए जो मर्ज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब किसी भी मरीज़ का आसानी से इस तरीके से इलाज कर सकते हैं। वो कैसे, मरीज़ को सामने बिठाएं, कोई भी मरीज़ आए उससे आप पहले मर्ज़ दरियाफ़त करें, क्या मर्ज़ आए, उस मर्ज़ को अपने तस्वर में रखें। फिर आपको क्या करना है कि 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 बार आपको पढ़ना है अली शाफ़ी अली काफ़ी अली मुआफ़ी। ये पढ़कर आप मरीज़ पर दम करें। फिर आप क्या करें, लंबी सांस ज़बान तालू से लगा करके दोनों नत्थों से लंबी सांस खींचे और तस्वर ये करें कि मैं इन सांसों के ज़रिए मरीज़ का मर्ज़ खींच रहा हूँ। फिर आप उसको साइड पर खारिज करें। ऐसे पहले आपकी आंखें बंद रहे, मरीज़ की आंखें खुली रहें, आप लंबी सांस खींचें और सांस खींचने वक्त ये तस्वर करें कि मैं इस मरीज़ का फुला मर्ज़ सांसों के ज़रिए खींच रहा हूँ। फिर आप उसको साइड पे खारिज करें। ये एक बार हुआ। इस तरह आप 11 बार करें, इंशाअल्लाह ताला एक ही चक्कर में एक ही बार उस मरीज़ का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। मगर उसके लिए शर्त है, पहले आप छोटे छोटे मरीज़ों पर इसको इस्तेमाल करें, ताकि जैसे आप करते जाएंगे उसकी तासीर बढ़ती जाएगी, आपका यकीन बढ़ता जाएगा, अमल काबू में आता जाएगा। फिर आप बड़े मरीज़ों पर भी कर सकते हैं, दूर वाले मरीज़ों पर भी कर सकते हैं। इसको आजमाएं और इसमें इसकी तरतीब में गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया ही वैसा ही करें। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपको ज़बरदस्त सुकून देगी। आपके जितने भी दुनिया के गम हैं आप भूल जाएंगे, छुपे हुए आपके मर्ज़ हैं ख़त्म हो जाएंगे, आपकी तबीयत में सुकून आ जाएगा और अंदर में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा, आपकी कैफियत तब्दील हो जाएगी। गोया आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कोई नशा किया है, इतना आपको सुकून होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सारी दुनिया के इंसानों के पास यही सुकून है, और आपके अंदर में एक एहसास पैदा होना लगेगा। आप इस चीज़ को आज़मा कर देखें। और तीसरी चीज़ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है ब्लड कैंसर का ख़ात्मा। किसी
मरीज़ को अगर खुदा न खास्ता ये हो, आप उसको दे सकते हैं आसानी से, कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी इसमें खौफ नहीं है, कोई भी ख़तरा नहीं है, कोई भी इसमें तकलीफ़ नहीं है। क्या करना है, मरीज़ को कहें कि सुबह के टाइम पर खुली जगह या हवादार कमरे पर बैठ करके या खड़ा हो करके ज़बान तालू से लगा करके दोनों नथों से लंबी सांस खींचे, जितनी भी खींच सकता है। फिर उसको फेफड़ों में, सीने में सांस को बंद करके 21 बार पढ़ना है, अली शाफ़ी अली काफ़ी अली माफ़ी, अली शाफ़ी अली काफ़ी अली माफ़ी। ये दुआ 21 बार पढ़नी है। उसके बाद वो जो सांस खींची हुई है उसको खारिज करें। ये अमल 20 मिनट तक रोज़ाना इसको करना है। पहले ब्लड कैंसर की रिपोर्ट कराएं ताकि ब्लड कैंसर किस हद तक आए, फिर इस अमल को करें। 1 माह के बाद रिपोर्ट कराएं, रिपोर्ट क्लियर आएगी। अगर मामूली कैंसर है तो, अगर कैंसर ज़्यादा है तो फिर 1 माह के बाद रिपोर्ट कराएं। कमी ज़रूर आएगी, याद रखना, कमी ज़रूर आएगी। जब तक ये मर्ज़ ख़त्म ना हो इसको करता रहे, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी पर 2 मरीज़ों पर इस चीज़ को आज़माया है, दिया है 2 लोगों को, दोनों का रिज़ल्ट बेहतरीन आया। ये मेरी मुजरब और आज़माई हुई चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि अक्सर लोगों से ये सुना गया है कि कहते हैं कि ये जो जिन्नात की हाज़िरी वगैरह के अमल हैं ये कुछ भी नहीं है, ये फ़राड है, ये धोखा है, कोई भी जिन वगैरह नहीं है। भाई देखें, कुरान पाक में सूरह जिन है, हकीकत है, जिन्नात हैं और उसकी हाज़िरी भी होती है। अगर आपको अमल ही सही नहीं मिलता, जो अज़ीमत है, जो चीज़ है वो सही नहीं मिलती है, या आप तरतीब गलत करते हैं, तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। जो मैं चीज़ आज आपको देना चाहता हूँ, किसी भी दोस्त को शौक़ हो, अली वाले को शौक़ हो, करके देखे। ये मुसलमान जिनकी हाज़िरी का अमल है, ज़बरदस्त अमल है, कभी भी ख़ता नहीं करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार खुद किया, और एक अफ़गानी पठान था, हमारी सिंध में आया था, वो चश्मा की दुकान थी, चश्मे बेचता था। किसी भी तरह मेरी उससे मुलाकात हुई, उसने कहा कि मुझे जिन्नात का बड़ा शौक़ है। मैंने उसको ये अमल दिया, पहली बार कामयाब नहीं हुआ, 16 दिन का अमल है। दूसरी बार उसने किया, वो कामयाब हो गया। उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ अपने वतन। फिर न उसका कोई फ़ोन वगैरह आया, न कोई उसका ख़त या कोई भी पैगाम नहीं आया। पता नहीं आज उसके पास तस्कीर जिनका ये अमल है या नहीं, इसने इस मुसलमान जिन से क्या काम लिया क्या नहीं, कोई पता नहीं है। उसके बाद अमल क्या है, तन्हा जगह में बैठ कर के 11 बार दुरूद पढ़ना है, और 7 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, 7 बार सूरह यासीन पढ़नी है, 7 बार सूरत रहमान पढ़नी है। ये तीनों चीज़ें 7-7 बार पढ़नी है, तनाई में पढ़नी है। दूसरा फ़र्द का होना नहीं चाहिए, और किसी से भी फ़ोन वगैरह पे बात नहीं करनी है, ठीक है। तन्हा जगह पे बैठकर 16वें दिन एक मुसलमान जिन हाज़िर होगा, वो आपके हाथ पे जो है ताबे हो जाएगा, शराइत रखेगा, कुछ कोल करार करेगा। उसके बाद वो आपका ग़ुलाम बन जाएगा, आपका खादम बन जाएगा। जिसका भी शौक़ हो ये अमल कर सकता है, कोई भी खौफ ख़तरा नहीं है। इसके लिए शर्त है, जो मेरी वीडियो है चिल्ला कशी के शराइत, उसको पहले सुनिए, और उसकी जो पाबंदी है, शराइत है, वो ज़हन में बिठाएं। और जब भी कोई अली वाला ये अमल करना चाहे, हमसे रब्ता ज़रूर करें। मेरा नंबर आपके पास है, जो मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है, उस पर रब्ता करें। कोई भी कर सकता है, बच्चा इसको नहीं कर सकता, मर्द भी कर सकते हैं, औरत भी कर सकती है, जवान भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। 16 दिन आपके लिए आपको जलाली और जमाली परहेज़ करनी पड़ेगी। कोई भी खौफ ख़तरा नहीं है, ये मुसलमान जिन है, इसे कोई भी ख़तरा नहीं है। जिसको भी शौक़ हो ये कर सकता है। ये हुआ तीसरा तोहफ़ा आपके लिए ईद गदीर की खुशी में। और चौथा, जो मैंने आपको आँखों की दुआ बताई थी, एक अहले सुन्नत के आलिम के किताब में मैंने पढ़ी थी, आज से 800 साल पहले उस बुज़ुर्ग की लिखी हुई किताब है। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि जिसको भी आँखों में दर्द हो या कोई मसला हो, तो ये दुआ 3 बार सलाई पर दम करके वो उस सलाई से सुरमा आँखों में लगाए, दर्द ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार एक बच्चे पर इस दुआ को आज़माया। बच्चे की आंखें ख़राब हो गई थी, मैंने उसकी वालदा को ये दुआ लिख के दी, उसने ऐसा ही किया।
3 दिन मुसलसल उसने किया, दर्द ख़त्म हो गया और आँखें ठीक हो गई। वो दुआ जो आपने कहा था कि लिख के स्क्रीन पर दिखाएं, हमें समझ में नहीं आता है, ये मैंने आपके लिए लिखी है ख़ास। आप देखें इसको गौर से और इसको नोट करें। ठीक है, और इसका जो तर्जमा है वो ये है, जब भी मेरी आँखें दुखती हैं, जब भी मेरी आँखों में दर्द होता है, तो फिर मैं अली इब्न अबी तालिब की कदमों की खाक को अपनी आँखों का सुरमा बनाता हूँ। ये इस दुआ का तर्जमा है जो अहले सुन्नत वाले आलिम ने अपनी किताब में लिखा है कि जिसको भी आँखों में दर्द हो, नज़र की कमज़ोरी हो, कोई मसला वो आँखों में लगा सकता है। इंशाअल्लाह ताला ये मुजरब दुआ है, इसको आप आज़माएं। ये 4 चीज़ें जो आज मैंने मौला अली मुश्किल कुशा की जो विलायत की ऐलान वाले दिन, ईद वाले दिन, इस खुशी में मैंने आपको दे दी। मेरा तो जी चाहता है मेरे सीने में जो कुछ भी है मैं अली वालों पे लुटा दूँ, मगर एक मजबूरी है कि लोग बड़ी वीडियो नहीं देखते। कहते हैं कि 5 या 10 मिनट तक वीडियो होनी चाहिए और ज़्यादा लोग वीडियो देखते नहीं। आप देखें कि मैं कितनी तेज़ी से गुफ्तगू करता हूँ और बीच में भूल भी जाता हूँ। इतनी तेज़ी से गुफ्तगू क्यों करता हूँ? इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचा जाऊँ। मैं ना अपना टाइम ख़राब करना चाहता हूँ, ना आपका टाइम ख़राब करना चाहता हूँ। थोड़े ही वक्त में ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और मैं एक बात को दूसरी बार कोशिश करता हूँ कि रिपीट ना करूँ, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपका वक्त ज़ाया ना हो। ये जो मैंने आपको चीज़ें दी है इस पर आप गौर करें, फ़िक्र करें, आज ही इन चीज़ों को आज़माएं। मैंने आपको कहा अगर मेरी कोई भी चीज़ गलत साबित हो, क़यामत वाले दिन मौला अली के सामने आप मेरा गिरेबान पकड़कर मुझसे हिसाब ले सकते हैं। अगर मेरी ये चीज़ें या पहले ही जो मैं आपको दे चुका हूँ चीज़ें सही साबित हों, आप उससे फ़ायदा उठाएं, तो क़यामत वाले दिन मौला के सामने गवाही ज़रूर देना कि या अली तेरे इस बंदे ने, तेरे इस मलंग ने हमको बेहतरीन तोहफ़े दिए थे, ये आपका हक़ बनता है। इसीलिए मैंने जो भी चीज़ें आपको दी हैं ये अली वाले कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और इन चीज़ों की इजाज़त उनको है। उसके लिए मेरा एक हदिया है। हदिया ये है कि आप कमेंट में लिखें पाक ज़ारा तेरे दुश्मनों पे लानत। जो भी ये लिखेगा मेरी दुआ उनके साथ, मेरी इजाज़त उनके साथ, वो किसी भी अमल को कर सकता है आसानी से। आपको कमेंट में लिखना है, जो भी आप नुस्खा करें उसकी इजाज़त के लिए आपको कमेंट में लिखना है पाक ज़हरा तेरे दुश्मनों पे लानत। ये आपको ज़रूर लिखना है। और जो बात आपको समझ में ना आए, मैंने आपको नंबर दे दिया है वीडियो में, उस पे आप राब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। मैं बंदा अली का हूँ, मुरीद कलंदर लाल शाहबाज का हूँ और ख़ादिम आपका हूँ। आज पता नहीं मैंने आपको इस बड़े दिन, भलारे दिन ईद की मुबारक दी या नहीं, मुझे तो याद नहीं है। फिर अगर दी भी है तो 2 बार फिर आपको मैं ईद गदीर की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। या अली मदद।